आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राज्य में सड़कों की अवस्था ऐसे ही बदहाल है, ऊपर से बारिश के मौसम ने इसे और भी खतरनाक बना दिया है। सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जा रहा है, जिससे राहगीरों के साथ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। लोगों का कहना है कि प्रशासन से बार बार कहे जाने के बावजूद भी अब तक प्रशासन सतर्क नहीं हो रही है। राज्य में सड़कों की अवस्था ऐसे ही बदहाल है, ऊपर से बारिश के मौसम ने इसे और भी खतरनाक बना दिया है। बारिश की वजह से सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे और भी गहरे होते जा रहे हैं। 2 दिन पहले हमने नेशनल हाईवे 2 पर स्थित पंजाबी मोड़ के पास बने सड़कों की अवस्था आपको दिखाई थी और आज भी एक ऐसी स्थिति हम आपको फिर से दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि रानीगंज के मंगलपुर नेशनल हाईवे 2 के सर्विस रोड की स्थिति कुछ ऐसी ही है। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे तो थे ही, ऊपर से बारिश की वजह से इन गड्ढों में पानी भर जा रहा है। नतीजा आने जाने वाले राहगीरों को गड्ढे नजर नहीं आ रहे हैं और वे उस गड्ढे में गिर पड़ रहे हैं। वहीं वाहन चालक भी लगातार इस गड्ढे को बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। राहगीरों ने प्रशासन से गड्ढे भरने और सड़क मरम्मत की मांग की है। वैसे यह कोई नई बात नहीं है, बारिश के समय में अक्सर ही इन गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती है, परंतु प्रशासन फिर भी इससे सतर्क नहीं हो रही है। আর আপনারা দেখছেন টিভি নিউজ, আমি সম্রাট। এই মুহূর্তে আজকে রয়েছি জাতীয় সড়ক 2 যেটা মঙ্গলপুরের সার্ভিস রোডের ওপর। এখানের এই রাস্তাটি ডেলি প্রতিদিন প্রায় 1000 লোকের জনসংযোগ করায়। রাস্তার কন্ডিশন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি আমার ক্যামেরা পার্সনকে বলবো যে রাস্তাটার একটু দেখানো হোক, মানে কি কন্ডিশনে রাস্তা হয়েছে। পথলের সাথে সাথে রাস্তা প্রায় ভঙ্গুর অবস্থায় পরিণত হয়েছে এবং সার্ভিস রোড দিয়ে মানুষ যাতায়াতের এই রোডটাকে অ্যাভয়েড করে পরবর্তী পর্যায়ে যে একটা কম্পিউটার ওয়েট ব্রিজ রয়েছে ওর পাশ দিয়ে একদম মানুষ এদিক দিয়ে যাতায়াত করছে। মানে সার্ভিস রোডটা ইউজ করা কিছু মানুষ ভুলে যাচ্ছে, কারণ তাদের মনে হচ্ছে তারা সবসময় একটা আশঙ্কা নিয়ে চলছে। আরও বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলবো এখানে লোকাল পাবলিক এবং যেসব মানুষ যারা প্রতিদিন এই রোডটাকে ব্যবহার করে এবং যাতায়াত করছে। নমস্কার। कैसा है? बहुत ही ख़राब है यहाँ, मतलब इतना गड्ढा है जो इतना लोड गाड़ी जो चल रहा है इसमें रास्ता ख़राब हो जा रहा है। ये रास्ता जल्द से जल्द अगर नहीं ठीक किया जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत लोगों का कहना है कि जो रोड में गड्ढा हो चुका है, बरसात का पानी उसमें जम जाता है, फिर जो बाइक बाहर से आता है कोई भी गाड़ी तो उसको समझ में नहीं आता। नहीं समझ में नहीं आता है, यहाँ गड्ढा में गिर के कुछ भी हादसा हो सकता है। अभी तक एक्सीडेंट हुआ नहीं है, तो हो भी सकता है। इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। सरकार से आप लोग क्या मांग रहे हैं? सरकार से यही बोलना है जो जल्द से जल्द ये ठीक किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होगा। ये मंगलपुर। मेरा नाम इम्तियाज खान। জাতীয় সড়ক 2 মঙ্গলপুরের সার্ভিস রোড দিয়ে আমরা দেখছি যে কিছু বাহন মোটরসাইকেল এই রাস্তা অ্যাভয়েড করে সার্ভিস রোডটাকে অ্যাভয়েড করে আপনার ওই কম্পিউটার ব্রিজের সামনে দিয়ে রাস্তা আছে এখান দিয়ে যাচ্ছে। কি কারণে? কারণ স্যার ওইদিকে যাওয়ার উপযুক্ত রাস্তা নেই, ওইদিকে গাড্ডা হয়ে গেছে অনেক। গাড্ডা হয়ে যাওয়ার ফলে মানুষ ওইদিকে যেতে পারছে না, যার জন্য আমার কাটা পাশ দিয়ে সব এখন পারাপার করছি। মানে আপনি কতটা অসুবিধার সম্মুখীন? আমি অসুবিধার মধ্যে আছি, কিন্তু তবুও আমি মানুষের অসুবিধা দেখে পরে জায়গা ছেড়ে দিয়েছি যাতে মানুষ সুবিধা করে যেতে পারে, কিন্তু ভারী যানবাহন এতে যাওয়ার জন্য আমার জায়গাটাও নষ্ট হয়ে গেছে। রোডের যা পরিস্থিতি এখান থেকে স্টার্ট হয়ে আগেও রয়েছে এরকম প্রায় অবস্থা, মানে বিপদের আশঙ্কা তো। হ্যাঁ, আমি চোখের সামনে অনেক টোটো পাল্টি হতে দেখেছি, এখানে উল্টে গেছে, বাচ্চাদের লেগেছে, চোট লেগেছে। এমনকি একটা গাড়ি এখানে বুঝতে পারেনি, যারা বাইরের গাড়ি বুঝতে পারে না তারা এসে দুমদাম এই গাড্ডার মধ্যে পড়েছে বা পেছনে ধাক্কাও মেরেছে, অনেক সময় অন্য গাড়ির সাথে ধাক্কাও মেরেছে। কি আবেদন রাখছেন? তো যাতে জলদি করে এটা রাস্তাটা বানানো যায় বা রিপেয়ারিং করা যায়, মানুষের যাতায়াতের জন্য সুবিধা হয়, সেটার জন্য আমি আশা রাখবো যাতে খুব জলদির মধ্যে হয়ে যাবে। আপনার নাম? সজল প্রামাণিক।
কন্ডিশন কিরকম আছে? মানে প্রতিদিন প্রায় হাজার হাজার মানুষের জনসংযোগ হচ্ছে এখানে, যাওয়া আসা চলছে, তো রোডের কন্ডিশন দেখে আপনার তো ডেলি যাতায়াত করছেন, কি মনে হচ্ছে? कंडीशन खूब खराब আছে। মানে অ্যাক্সিডেন্ট প্রতি মুহূর্তে হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, রাস্তা যাই বলুন। কি বললে? রাস্তা জলের টাইমে রাস্তা ভর্তি হয়ে যায়, অ্যাক্সিডেন্ট বহুত ভয় আছে। তো আপনারা সরকারের কাছে কি আবেদন রাখছেন? যেমন রাস্তাটা হয় কতদিন ধরে এরকম এরকম অবস্থা আছে? ততদিন অনেক দিন ঠিক আছে, বানাই নাই তো। আপনার নাম? श्री प्रकाश बर्नवाल। वो दिक्कत तो वैसे देखिएगा बहुत दिक्कत है, पानी में गाड़ी पलटी मारने का इधर है इसमें, और जाम भी लगा हुआ रहता है, बड़ा बड़ा गाड़ी यहाँ पर पलटी मार देता है, टूट जाता है, पत्ती टूट जाता है। हम लोग अभी गाड़ी बहुत दिक्कत होता है, डर रहता है थोड़ा कहीं कुछ हो नहीं जाए, पैसेंजर भी कुछ हो जाएगा तो हम लोग को इसलिए डर होता है हम लोग को। कितना दिनों से रोड का कंडीशन इस सिचुएशन में है? बहुत दिन हो गया, मोटा मोटी आपका ऐसे हम लोग का 6-7 महीना से तकलीफ में है। गाड़ी का मतलब टोटो का भी सामान टूट जा रहा है, बड़ा गाड़ी का भी टूट रहा है। सरकार से क्या मांग रहे हैं? वही मतलब रोड सही हो जाए तो अच्छा है, सब कर हम लोग को भी आराम होगा चलाने में। हम तो डेली कमाने खाने वाला है। क्या नाम है? हमारा नाम हुआ फ़हीम सिद्दीकी, जगह क्या है? मंगलपुर मोड़। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, यहाँ तक कि घरेलू गैस के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं। इसी के विरोध में पूरे देश भर में ट्रेड यूनियन सीटू की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है तथा इसी क्रम में रानीगंज के नेशनल हाईवे 60 पर स्थित एनएसबी रोड के शांति पेट्रोल पंप के समीप सीटू की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, यहाँ तक कि घरेलू गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इतना ही नहीं, खाद्य सामग्री के दाम भी गरीबों की आय से अधिक बढ़ रहे हैं। नतीजा, गरीब के अलावा मध्यम वर्गीय परिवार भी अब अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए सोच में पड़े हुए हैं। इसी महंगाई के विरोध में पूरे देश भर में ट्रेड यूनियन सीटू की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तथा इसी क्रम में रानीगंज के नेशनल हाईवे 60 पर स्थित एनएसबी रोड के शांति पेट्रोल पंप के सामने सीटू की ओर से विरोध जताया गया। प्रदर्शन के दौरान सीटू की ओर से कहा गया कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि हो रही है उसे ध्यान में रखकर सरकार को इसे जीएसटी के दायरे से हटाना चाहिए ताकि लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ कुछ कम हो। इसके साथ ही मांग रखी गई कि जो परिवार इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आता है उन्हें 6 महीने तक 7,500 रुपए हर महीने के दिए जाए। इसके अलावा देश में जो भी काला बाजारी चल रही है उसे रोकने की भी मांग सीटू की ओर से की गई। इस प्रदर्शन का नेतृत्व रानीगंज के पूर्व विधायक रुनु दत्ता ने किया। साथ ही इस मौके पर हेमंत प्रभाकर, सुप्रियो राय, कल्लोल घोष, दिवेंदु मुखर्जी, देवाशीष बैनर्जी, कृष्णा दास, शाश्वती मित्रा, पुराण माझी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पेट्रोल डिजेलेर मूल्য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সিআইটিউর আন্দোলন চলছে চলবে। পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও। পেট্রোল ডিজেলের অন্য গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও দিদি মোদি নীরব কেন? জবাব দাও। একাশো মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সিআইটিউর আন্দোলন চলছে চলবে। পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সিআইটিউর আন্দোলন চলছে চলবে। যেমন কোন প্রতিবাদ করছে না তারই সঙ্গে তারা সরকারে আসীন থেকে এই মূল্য বৃদ্ধিকে রোধ করার কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা করছে না। একটা সময় জানেন মোদী সরকার তারা বলেছিল যে দেশে এক কর ব্যবস্থা থাকবে, এক দেশ এক কর ব্যবস্থা। আগে যা ছিল অনেক ধরনের কর ব্যবস্থা, সেই কর ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়ে এক দেশে এক কর ব্যবস্থা থাকবে। আপনারা জানেন যে পেট্রোল ডিজেলের উপরে কোনো জিএসটি নেই, সব জিনিসের উপরে জিএসটি আছে। মাত্র অতিরিক্ত জিএসটির ফলে মানুষ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এমনকি জীবনদায়ী ওষুধ, করোনা মোকাবিলার সরঞ্জাম, অক্সিজেনের সিলিন্ডার, তার উপরেও জিএসটি আছে। কিন্তু পেট্রোল ডিজেলের উপরে জিএসটি নেই। কেননা পেট্রোল ডিজেলের উপরে যদি জিএসটি লাগু করতে হয়
তাহলে পেট্রোল ডিজেলের দাম আকাশ ছোঁয়া হবে না। আর পেট্রোল ডিজেল থেকে যে আয় সরকার করছে সে আয় হচ্ছে কমে যাবে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটির আওতায় পেট্রোল ডিজেলকে আনছে না, আর রাজ্য সরকারও তার করকে প্রত্যাহার করছে না। रानीगंज कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से लाल सलाम संग्रामी अभिनंदन पेश करता हूं। किसी ने कहा था कि अन्याय अगर बढ़े, अत्याचार अगर समाज में देश में बढ़े और राजा तानाशाह और भयंकर अत्याचारी हो उठे तो प्रतिवाद ही उसका एकमात्र रास्ता होता है। आज पूरे देश एवं मुल्क में केंद्र की जो सरकार चल रही है मोदी के नेतृत्व में, जो सरकार भाजपा की नहीं दो व्यक्तियों की पार्टी है, वो मोदी और अमित शाह की पार्टी है, मोदी और अमित शाह की सरकार है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय लोकतंत्र में सरकार जनता की होती है, लेकिन ये सरकार अदानी अंबानी और मोदी अमित शाह की सरकार के रूप में सिमट के रह गई है। महंगाई की मार हर दिन देश की जनता झेल रही है। हम लोग गांव में बोलते हैं, बंगला में सुनते थे कि एक ही मां मनुष्य तारू को ढूंढो गंदो। आज एक तरफ पूरा देश में भयंकर तरीके से महामारी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। अब वैज्ञानिक पद्धति से कोरोना संक्रमण को मजाक के तौर में देश की सरकार ली, वैक्सीन नहीं मिल रहा है। हम सीआईटी के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि वैक्सीन सभी के गांव के लोगों को, गरीब गुरबा मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला मजदूर जो इस संक्रमण का शिकार ज्यादा हो सकते थे, उनको वैक्सीन देना होगा। चुनाव था तो घोषणाएं हो गई ममता। CII सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन पूरे राज्य के पैमाने पर पेट्रोल डीजल का कीमतों में जो बढ़ोतरी लगातार चुनाव के बाद प्राय 21 से 23 बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है एवं इस पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से महंगाई आसमान को छू रही है। इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ, मोदी सरकार की इस रवैये के खिलाफ आज हम लोग प्रतिवाद सभा किए थे। हमारी मांग है पेट्रोल डीजल का कीमतों को मत बढ़ाइए, उसको कमाइए, महंगाई पर सरकार नियंत्रण करे, राशन में 10 किलो करके अनाज लोगों को दे। जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रहा है, लोगों को बैंक अकाउंट में 7,500 रुपया देना होगा और वैक्सीन में घोटाला हो रहा है। सरकार चुनाव के पहले वादा किया था, बंगाल की सरकार भी और दिल्ली की सरकार, कि 1 जून से सभी को वैक्सीन मिलेगा। अभी तक गाँव के गरीब मजदूर, किसान जो दिन मजदूरी करते हैं वो वैक्सीन की लाइन से दूर हैं। वैक्सीन में लाइन में कौन है? जो सरकार के करीब है, जो नेताओं के करीब है। इसलिए मांग करते हैं कि वैक्सीन सभी को देना होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम लोग CII प्रतिवाद किए हैं। आगामी दिन में प्रतिवाद और भी बढ़ाएंगे और सरकार को उनके जनता के हित में काम करने के लिए बाध्य करेंगे। CII যেখানে যেখানে পেট্রোল পাম্প আছে এবং যেখানে পেট্রোল পাম্প নেই সেখানে জনপ্রিয় জায়গায় জনগণ যেখানে দাঁড়ায় সেখানে যে বিক্ষোভ জানাতে বলা হয়েছে। অস্বাভাবিকভাবে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে, সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। মোদি সরকার হচ্ছে পেট্রোল ডিজেলকে নিয়ন্ত্রণে রাখছে না, জিএসটির আওতার বাইরে রেখেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে মানুষের হচ্ছে অসম্ভব অসুবিধে বাড়ছে। যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে প্রায় 100 টাকা পেট্রোল ডিজেলের দাম হয়েছে, ফলে পরিবহন খরচা বাড়ছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। লকডাউনের ফলে মানুষ বিপর্যস্ত, তাদের ইনকাম কমেছে, বিপদ বেড়েছে, কিন্তু সরকারের কোনো হুঁশ নেই। বরঞ্চ আমরা দেখছি এই শেষের পর ট্যাক্স রাখার ফলে সরকারের দুটো সরকার, পশ্চিমবাংলা সরকার এবং হচ্ছে যে রাজ্য সরকার, দিল্লির সরকার, দুটো সরকারের ইনকাম বাড়ছে, কোনো রকম রিলিফ মানুষকে দিচ্ছে না। এই জন্য আমরা মানুষেরকে যাচ্ছি, মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছি যে যতবার পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ে ততবার দুটো সরকার, রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের ইনকাম বাড়ছে। ফলে তারা নিজের ইনকামটা বাড়িয়ে যাচ্ছে, মানুষের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নিচ্ছে না। এই যে নির্বাচন হয়ে গেল, এত অসংখ্য সিট হচ্ছে যে তৃণমূল পেল, কিন্তু তারপর তার সরকার কখনো প্রতিবাদ করছে না কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে, বা তার যে যা শেষে প্রত্যেক দিন হচ্ছে তার ইনকাম বাড়ছে, সেগুলো ছাড়ার চেষ্টা করছে। আমরা পেট্রোল ডিজেলের উপর জিএসটি লাগু হতো, দাম কমে যেত, 40-50 টাকার ভেতরে আমরা পেট্রোল ডিজেল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। बुधवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आसनसोल बाजार स्थित बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
बुधवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आसनसोल बाजार बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर बीजेपी जिला कन्वेनर शिवदास बर्मन, कृष्णेंदु मुखर्जी, शंकर चौधरी, सुदीप चौधरी, तापस राय, भिगू ठाकुर सहित अन्य बीजेपी नेतागण उपस्थित रहे। आज के 23 जून বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সুসন্তান, যাকে আমরা বাংলা কেশরী বলে জানি, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আজকে বলিদান দিবস। সেই উপলক্ষে আজকে আমরা আসানসোল জেলা কার্যালয়, এটা আমাদের আসানসোল খুব পুরনো পার্টি অফিস, বাজার পার্টি অফিস নামে পরিচিত, আমরা সব জায়গায় ওনার বলিদান দিবসে ওনাকে আমরা পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে সম্মান জানাচ্ছি। আমরা আমাদের যারা কার্যকর্তা যারা আছে, সমস্ত সিনিয়র কার্যকর্তা, নির্মলদা থেকে আরম্ভ করে শঙ্করদা আছে, পবন সিং আছে, ওমদা আছে, আমাদের সভাপতিজি আছেন, কৃষ্ণেন্দু আছে, আমাদের যুব মোর্চা অরিজিৎ আছে, সবাই মিলে আজকে আমরা সেই দিবস পালন করছি। তো তার মাঝে আমি একটা কথা বলবো, যেদিন আমরা ঘটে গেছে, যে ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা বেরিয়েছি 2 তারিখের পরে, সেই দিন কালো দিন যেটা বলা যেতে পারে, সেই দিন আমরা কিন্তু এখনও ভুলিনি। তার উপলক্ষে আজকেও আমাদের একটা অন্য কার্যক্রম নেওয়া আছে, ডিএম অফিসে আমরা আজকে ধর্ণা এবং ডেপুটেশন আমরা ডেপুটেশন দেবো আজকে। তো সেই কালো দিন এবং তারপরে পোস্টপোল ভায়োলেন্স যা চলছে আমাদের এখনও, যেটা আমরা কখনো ভাবতে পারিনি, ইলেকশনের পরে ভারত স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরেও আজকে সেই দিনে আমাদের দেখতে হবে আমাদের। তো তার জন্য এরপরে আমরা যাচ্ছি, যারা ডিএম অফিস যাচ্ছি আমরা, ওখানে আমরা ডেপুটেশন দেবো। তো আপনাদের বল, আপনারা ওখানে আসুন। এসে आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बुधवार की सुबह सेल आईएसपी के स्कोप गेट में सक्रिय 5 यूनियन के नेतृत्व में एक विशाल गेट सभा का आयोजन आगामी 30 जून के प्रस्तावित 1 दिवसीय हड़ताल के समर्थन में की गई। बुधवार की सुबह आईएसपी के स्कोप गेट में सक्रिय 5 यूनियनों के नेतृत्व में एक विशाल गेट सभा का आयोजन आगामी 30 जून के प्रस्तावित 1 दिवसीय हड़ताल के समर्थन में किया गया, जहां हजारों कर्मियों ने गेट जाम करके आगामी हड़ताल का समर्थन किया। ज्ञात हो कि सेल कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण का मामला 1 जनवरी 2017 से लंबित है। कल हुए वर्चुअल एनजेसीएस मीटिंग में भी मैनेजमेंट के अपमानजनक प्रस्ताव दिया था, जिसे एक सिरे से सभी यूनियन ने नकार दिया। आज दोबारा से दोपहर 3 बजे से एनजेसीएस की मीटिंग बुलाई गई है, ताकि कर्मियों का वेज रिवीजन किया जा सके। कार्यक्रम का संचालन कर रहे इंटक के महासचिव हरजीत सिंह ने बताया कि सेल कर्मियों के सम्मानजनक वेतन समझौता 54 माह से बकाया हो जाने के बाद में सेल मैनेजमेंट और मौजूदा मजदूर विरोधी केंद्र सरकार इस विषय को लेकर चिंतित नहीं है, और इसी का नतीजा है कि सभी यूनियन को 30 जून को पूरे सेल में हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। अगर अब भी ये नींद से नहीं जागी तो आगामी प्रस्तावित 30 जून के हड़ताल एक ऐतिहासिक हड़ताल साबित होंगे, और इस नुकसान का जिम्मेदार केवल और केवल सेल मैनेजमेंट और केंद्र सरकार की होगी। आईएसपी के यूनियन द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार आज शाम 4 बजे व्हीकल गेट के बाहर भी हड़ताल के समर्थन में गेट मीटिंग किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में इंटक यूनियन की ओर से महासचिव हरजीत सिंह, अजय रॉय, मोहम्मद अनवर, विप्लव माझी, सोनू सिंह, रविंद्र सिंह, मानस नायक, आतिश सिन्हा समेत सैकड़ों यूनियन कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल जिला अंतर्गत बराकर दामागोड़िया नेशनल हाईवे में स्थित हरियाणा मेवात होटल के मालिक मोहम्मद खुर्शीद के आपसी रंजिश के कारण बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें खुर्शीद गंभीर रूप से घायल हो गया तथा घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आसनसोल जिला अंतर्गत बराकर दामागोड़िया नेशनल हाईवे में स्थित हरियाणा मेवात होटल के मालिक मोहम्मद खुर्शीद को राधा किशन होटल एवं सम्राट होटल के मालिक ने होटल की आपसी रंजिश के कारण बुरी तरह से मारपीट किया। इस दौरान मोहम्मद खुर्शीद बुरी तरह से जख्मी हो गए। लहूलुहान खुर्शीद को स्थानीय ड्राइवर विनोद एवं कुछ साथियों द्वारा बराकर रानी बंगला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर हरियाणा मेवात होटल में खाना खाने आए हुए ड्राइवर ने बताया कि अचानक से आकर पास के होटल वालों ने एवं उसके 15-20 साथियों ने मोहम्मद खुर्शीद पर हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मोहम्मद खुर्शीद के परिजनों का कहना है, हम चाय डलाए थे पीछे गाड़ी से डंपर से, वो डंपर थोड़ा 11,000 की लाइन में टच हो गया था।
टच होने के बाद में ये लोग आए, बोले तुम जबरदस्ती करते हो, ये करते हो, ऐसे टच क्यों कर दिया। मैं बोला भाई हम उसको आवाज़ मार रहे थे, वो आवाज़ मारते मारते टच कर दिया। बोले फिर लाठी डंडा रोड 10-15 आदमी गांव से बुलाए, सब लोग बढ़िया से मारे डंडा लाठी, 15 आदमी मारे। बोले तुम साला मुस्लिम हो, यहाँ पे मुस्लिम का यहाँ पे कोई गुजारा नहीं है हिंदू एरिया में। आपका कौन सा जगह होटल था? ये दमागुड़िया, क्या नाम है? पुराना कल्याण श्री मंदिर के पास में, हरियाणा मेवात होटल। क्या नाम है? हरियाणा मेवात होटल। आप कहाँ के रहने वाले? हरियाणा के। यहाँ पे कितने दिनों से आप? 3 साल हो गया है। आए दिन ये लोग करते हैं झमेलाबाजी, आए दिन करते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। क्या नाम है आपका? खुर्शीद अहमद। दामागुड़िया निकट हाईवे में हमारा हरियाणा मेवात होटल है, किंतु पास में ही मौजूद राधा किशन होटल एवं सम्राट होटल के दोनों मालिकों आपस के परिवार हैं और हमेशा से ही मोहम्मद खुर्शीद को उनके द्वारा परेशान की जाती है और धमकी भी दी जाती है। परिजनों का कहना है कि पुलिस प्रशासन भी इस घटना पर नहीं पहुंची। परिजनों द्वारा इसकी जानकारी मेडिकल रिपोर्ट के साथ चौरंगी थाना को दी गई और प्रशासन से इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी अपील की गई। साथ ही साथ परिजनों ने कहा कि जितना भी नुकसान हुआ है उसका भी हर्जाना दिया जाए। घटना हुआ था? घटना ये हुआ था कि मैं तो खाना खाने के लिए गया था इनके पास में, तो वो इन्होंने रेता गिरवाया था डंपर से, तो वो ऊपर 11,000 की लाइन में टच हो गया तो साइड में बगल में होटल वाला है, वो मारने के लिए आया। उसने फिर और 10 बंदों को बुला लिया फ़ोन करके, इसको बहुत मारा था। कितने लोग मारे थे? इसको कम से कम 10 लोग मारे थे। क्या चीज़ से मार रहे थे? लाठी, रोड, पत्थर। कहाँ पे ये घटना हुआ? तो कौन सी जगह था? जगह का तो कौन सी जगह है? आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तुरंत ही लौटेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें?
स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें। परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है NSB रोड अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज के रोनाई शरीफ इलाके में वाहन से बैटरी चोरी करने पर आरोपी के भाई को बांधकर रखा गया है। आपको बता दें कि सलमान खान जिसकी गाड़ी से बैटरी चोरी हुई है, उसकी शर्त है कि पहले उसका सामान या बैटरी में लगा पैसा लौटाया जाए, तभी आरोपी के भाई को वे छोड़ेंगे। रानीगंज के रोनाई शरीफ इलाके में वाहन से बैटरी चोरी करने पर आरोपी के भाई को बांध कर रखा गया है। यह इलाका आसनसोल नगर निगम के 35 नंबर वार्ड अंतर्गत पड़ता है। रोनाई शरीफ इलाके के रहने वाले सिनबाद खान की गाड़ी से एक चोर ने बैटरी चुरा ली, जिसके बाद सिनबाद खान ने आरोपी के भाई को कैद कर लिया है। सलमान खान की मांग है कि या तो चोर उनकी गाड़ी से चुराए गए बैटरी को वापस करे या फिर उसकी कीमत दी जाए। दोनों में से कोई मांग पूरी होने के बाद ही आरोपी के भाई को छोड़ने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो उसके भाई को नहीं छोड़ा जाएगा। इधर आरोपी के भाई का कहना है कि चोरी उसके भाई ने की है, लेकिन इसकी सजा उसे भुगतनी पड़ रही है। आज रोनाई में 2 बैटरी चोर धराया है। जो ट्रैक्टर का बैटरी मार के निकल गया। ये लोग को पकड़ने के बाद मारपीट नहीं हुआ, ये लोग सही से पूछा गया, ये लोग चोरी किया है। इसका दौरान ये लोग गच्छा बचने तैयार है। ये और इसका एक भाई का दौरान ये लोग 5000 धरे, इधर घुमाइए। ये 5000 रुपये भरने वाला है और इसका 3000 में बात हुआ है। 8000 का बैटरी चोरी हुआ है, जिसमें से ये 5000 और ये 3000 भरेगा। तो ये लोग आज ये लोग बैटरी चोरी करके गायब था। ये लोग घर से हम लोग लेके आए। ये लोग चोरी हुआ सुबह में, मतलब रात में चोरी हुआ, हम लोग सुबह खबर हुआ। ट्रैक्टर, हाँ, महिंद्रा 275 का बैटरी था। गाड़ी आबिदुल खान उसका बैटरी था और ये लोग चोरी किया है। चोरी का दौरान ये 5000 और ये 3000 भरने का वादा किया है। और ये लोग मैंने अपने आप को कबूलियत किया है, लेकिन जब कैमरा के सामने ले जा रहा फिर ये लोग मुकर रहा है। अगर चोरी नहीं करता तो पैसा क्यों भर रहा है, और जब धरने की है तो घर से भाग गया, जंगल से पकड़ के लेके आए हैं। तो क्या अभी इसको साथ क्या करेंगे? इसको पुलिस को दे देंगे या फिर अपना हरजाना भर देता है तो ये लोग जा सकता है। आपका नाम? मेरा नाम सिनबाद खान, रोनाई शरीफ, रानीगंज। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। पांडेश्वर थाना के अलीनगर गांव के रहने वाले सुभाष घोष के बंद घर का ताला तोड़कर नकदी सहित कीमती जेवरातों की चोरी की घटना से इलाके के लोगों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। वहीं पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई तथा फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। रात के अंधेरे में ताला तोड़कर पांडेश्वर में एक चोरी की घटना हुई। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक करीब 20 तोला सोने के जेवर और 2.5 लाख रुपए नगद की चोरी हो गई है। घटना बुधवार को पांडेश्वर थाने के अलीनगर गांव की है। सुभाष घोष का घर चोरी हुआ था। सुभाष बाबू के भतीजे कंचन घोष ने कहा कि चाचा कल घर पर नहीं थे, वह अपनी बेटी के घर दुर्गापुर गए थे। यह मौका देखकर बदमाशों ने घर के गेट का ताला तोड़ दिया और सब कुछ चुरा लिया। चोरी की घटना की जानकारी पांडेश्वर पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची एवं चोरी की घटना की जांच में जुटी हुई है। কি ঘটেছে? এই কাকু বাড়িতে ছিলেন না, কাকু কাকিমা সব মেয়ের বাড়ি গিয়েছিল। সেই সুযোগে রাত্রে তালা ভেঙে বাড়ির সমস্ত জিনিস, নগদ টাকা, গয়না সব চুরি হয়।
মোটামুটি কত টাকা জিনিস পেয়েছে? মোটামুটি আনুমানিক নগদ টাকা ছিল 2.5 লক্ষর মতো, মানে মেয়ের এবং কাকুর মিলে। আর গয়না প্রায় 230 গ্রাম মতন ছিল মেয়ের এবং কাকুর মিলে, এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জিনিসপত্র সব তছনছ করে গিয়েছে। এখন পর্যন্ত এগুলোর কোনো ইয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনার কাকুর নাম? সুভাষচন্দ্র ঘোষ, পিতা লেট ঋষিকেশ ঘোষ, গ্রাম আলীনগর, পোস্ট কোট্টাড্ডি, থানা পান্ডিবিশর, পশ্চিম বর্ধমান। আপনার নাম? কাঞ্চন ঘোষ। গহনা মোটামুটি কত পেয়েছে? গহনা এমনি যদি নেন তো মেয়ের গেছে, ছেলেদের এবং মেয়েদের দুখানা বড় চেন, চাপা হার একটা, হাতে চূড় দুটো, বালা দুটো, চুড়ি মানে এক জোড়া করে, কানের দুল বড় এক জোড়া, এটা হচ্ছে মেয়ের গয়না চুড়ি। আর কাকুর মানে কাকিমা ছিল গলার চেন দুখানা, ছাঁকা বাঁধা এক জোড়া, হাতের বালা এক জোড়া, কানের দুল 2 জোড়া বড়, টাপ ছিল 2 জোড়া, রিং ছিল 2 জোড়া, আর ছোট এই যৌতুকে পড়া 5 জোড়া, আংটিগুলো 5 জোড়া, 5 জোড়া। আর আংটি ছিল 5টি মেয়েদের আর ছেলেদের একটি। মোট টোটাল কত ভরি গয়না ছিল? টোটাল মোটামুটি 230 থেকে 40 গ্রাম মতো। থানায় ডায়েরি করেছে? থানায় ডায়েরি হয়েছে, পুলিশ এসেছিল। पांडेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कल्याणेश्वरी पीएचई विभाग पर बार बार कटमनी को लेकर नौकरी देने का आरोप लगता आ रहा है, जिसे लेकर सत्ता दल के 2 गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं। बुधवार को भी कटमनी को लेकर कल्याणेश्वरी पीएचई कार्यालय के सामने स्थानीय युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। कल्याणेश्वरी पीएचई विभाग पर बार बार कटमनी को लेकर नौकरी देने का आरोप लगता आ रहा है, जिसको लेकर सत्ता दल के 2 गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं। बुधवार को दिन फिर कटमनी को लेकर कल्याणेश्वरी पीएचई कार्यालय के सामने स्थानीय युवाओं ने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि कल्याणेश्वरी पीएचई कार्यालय लैब विभाग में 3 कर्मचारियों की बहाली की गई थी। खबर मिलते ही स्थानीय युवक भड़क गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बुधवार सुबह से पीएचई के मुख्य द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कुल्टी थाना की चौरंगी फाड़ी पुलिस पहल के बाद कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस नेता एवं प्रदर्शनकारी युवक ने प्रदर्शन को बंद किया। इस संदर्भ में कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल नेता मोहित मंडल ने शिकायत की है कि पीएचई कार्यालय में पैसे लेकर नौकरी को बेचा जा रहा है। युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के बावजूद उन्हें आज तक नौकरी क्यों नहीं दी गई है और उनके स्थान पर अन्य नियुक्ति दे दी गई। यह सब यहाँ कार्यरत कल्याण घोषाल द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। इसके लिए उन्होंने लिखित शिकायत भी की है, जिसके बाद पीएचई अधिकारियों ने 72 घंटे का समय मांगा। अधिकारियों ने स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की भी बात कही है। वहीं मोहित मंडल द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को नकारते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण घोषाल ने कहा कि यह सारे आरोप गलत है। चुनाव में जिन्होंने कार्य नहीं किया वे अब बाहर निकले हैं। सब स्थानीय युवक को कार्य मिलने से जल रहे हैं, इसलिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पीएचई अधिकारियों ने युवक की नियुक्ति की है। তাহলে রাতের অন্ধকারে এইভাবে নেবে কেন? কথা হয়েছে, টেবিলে কথা হয়েছিল যে আপনাদেরকে ডাকবো, তারপর বসে পরে করবো না। তো ততক্ষণ আমি চিঠি দিতে যাচ্ছি, এটা টাইপ হয়ে গেছে, আমি দিতে যাচ্ছি, তো এরা ওইখানে করবো, ছেড়ে দেবো না। এইভাবে এই কাম চিঠি দিচ্ছি, এইভাবে না করে এদের যারা আধিকারিক যারা আছে তাদের সঙ্গে আপনি নিজে গিয়ে কথা বলুন। আমি সেটার কথা বলছি, এটা চিঠি দিচ্ছি, কিন্তু আপাতত সেই দিন রাতে যেমন বের করা হয়েছিল, 2টো বেজে বের করা হয়েছে, 2বার লাগিয়েছে বের করছে, আজকেও সেরকম কিন্তু স্টপ থাকছে যতক্ষণ পয়সা। এই যে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা দেখালো, এটা তাতে লেখা আছে ইলেকট্রিশিয়ান প্লাস হেল্পার আছে, তো হেল্পার আছে, তো এরকম আছে। আমরা ওই পদে তো নিই না, আমরা নিয়েছি ব্যাকটেরিয়ালজিস্ট আর ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট। ও পেপারটা আমাকে দেখাবে, পেপারটা দেখাবে, 1 পিসি পেপার ও নিজে প্রিন্ট করিয়েছে। এমন হতে পারে যে দুজনে পেপার কাটিংটা পেলো, দুজনে ইন্টারভিউ দিল, আর কেউ জানলো না, পশ্চিমবঙ্গে আর কেউ জানলো না। ওই একটাই পেপার কাটিং বেরিয়েছিল, ওই যেটা আমার কাছে পেপার কাটিং পড়ে আছে। কথা বলেছেন এইভাবে না করে আধিকারিকের সঙ্গে আপনি কথা বলুন। আমি যাচ্ছি, তো অফিসে যাচ্ছি, উনি কলকাতায় আছে, আমি চিঠিটা দিচ্ছি ঘেরাও। কথা তো উনি বলবো বলেছিলেন, কিন্তু বলেননি, এখনো পর্যন্ত। কালকে আমি ফোনও করেছিলাম, ঠিক আছে। এটা কি আছে, ওদের কি ডকুমেন্টস আছে না আছে আমার জানা আছে, তো ও বলে দিলে তো আর হবে না যে কিভাবে ঢুকেছে না ঢুকেছে, আগের প্যাটেও কিভাবে ঢুকেছে, এই তো পলিটিক্যাল প্যাটে তার দিকে আন্দোলন করে
করে এই বাবাই ঘোষালই বাইর করে। আজকে বাবাই ঘোষাল পয়সা খেয়ে কৌশিককে ঢুকিয়েছে। আর এখানে যত কাচড়া করে বাবাই ঘোষাল, ও নিজেও কাজ করে, ওর ভাইও করে, একটা কোয়ার্টারও দখল করে আছে। আগামী দিনে মনে হয় বউকে ঢুকাবে, আমি যেটুকু খবর পেলাম। ও কি কোনো রাজনৈতিক দলে যুক্ত আছে? হ্যাঁ, টিএমসির সঙ্গে যুক্ত আছে। তো আপনারাও তৃণমূল, ওরও তৃণমূল, এখানে কি মনে হচ্ছে আপনার? ও পাঁচির ওপর বসেছিল, আর তৃণমূলে সে তৃণমূল, তাহলে বিজেপি চলে যেত। এর আগে সিপিএম করতো, তারপর কংগ্রেস করতো, কে জানে, সবাই জানে। তারপর তৃণমূল এসছে, তাহলে বিজেপি যেত। তাহলে সবাই জানে অনেকে পাঁচির ওপর বসেছিল ভোটের আগে, যেদিক পেলে ঝাঁপ মারবে। আবারও কি কাটমানির অভিযোগ জানা যাচ্ছে? কাটমাই নেই, বাবাই দা এগুলো করে, যে কোনো এই পিএইচি যত কাছড়া বাবাই ঘোষাল। আপনি তো বলছেন টাকা নিয়ে কাজ দেয়, তাহলে কি কাটমানির আবারও সে কাটমানি? হ্যাঁ, বাবাই ঘোষাল এগুলোই করে। আমার কাছে অনেকবার গেছিল, মানে আবারও কাটমানি এখানে চলছে? হ্যাঁ, বাবাই ঘোষাল কাটমানি। এই নিয়ে বারবার অভিযোগ হয়তো এখানে তো বারবার এরকম যত কাছড়া করে বাবাই ঘোষাল। ওকে যদি এখান থেকে ট্রান্সফার করা হয় তাহলে কোনো ঝামেলা হবে না। কি দাবি রাখছেন আপনারা? ওকে এখান থেকে ট্রান্সফার করা হোক। ও ডিউটিও করে না, খালি এই দালালি বিদ্যা করে বেড়ায়। তো আজকে যে বিক্ষোভটা করলেন মূলত কিসের জন্য? মূলত আমরা করেছিলাম যে 4 জন ছেলে 11 দিন কাজ করেছিল তার দিকে নেওয়া হোক। তাদেরকে কি ইয়ে করে দিয়েছে? বার করে দিয়েছে। নতুন কি কাউকে যোগ করা হয়েছে? হ্যাঁ, 2 জনকে যোগ করা হয়েছে। এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি ওরা 4 জনকে নেওয়া হোক। কি নাম আপনার? মোহিত মন্ডল। একটা অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে উঠে আসছে কাটমানি। কি অভিযোগ? কোন জায়গা? পিএইচি দপ্তরে কর্মী নিয়োগে নিয়ে। না, ওটা আমারও কানে এসছে। 2 দিন আগে এখানে পিএইচি যে ল্যাবরেটরি আছে ওখানে একটা এসেন্সিয়াল জায়গা, ওখানে নাকি 3টে ছেলে রিক্রুটমেন্ট হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের একটা পার্টি কর্মী, আমাদের এখানে এলাকার একটা ছেলে রয়েছে। এটা আমরা শুনেও খুব আনন্দিত। আর যারা সারা বছর ভোটে খাটেনি তারা এখন এসে যে যার ভাট বুকবে, ওসব কথায় কান দিলে হবে না। আর আপনাদের চোখের সামনেই তো যে ছেলেটা কাজ করছে সে তো এখানকারই ছেলে। আপনারা তো তার কাছে গেলে জানতে পারবেন কে কাটমানি খেয়েছে কে খায়। এর আগেও তো আপনার বিরুদ্ধে এর আগেও আন্দোলন হয়েছে এবং বিক্ষোভ হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা লোকাল ইস্যুতে এখনো রেখেছি। আমি নিজে বারংবার আমি আমার বিধায়কের সাথেও কথা বলেছি 5 জনের জন্য, যেটা আমি ছিলাম এর আগে যে ঝামেলাটা হয়েছিল। আমি নিজে বিশ্বজিৎকে সঙ্গে নিয়ে সাহেবের কাছে গেছি, ওটা এখনো আছে। ওইটা তো আমরা এখনো বারংবার বলছি, তবে সাহেব বলছে এখনো অবধি সেরকম কোনো সিচুয়েশন হয়নি, হলে আপনাদেরকে জানানো হবে, আপনাদের মাধ্যমেই লোক নেওয়া হবে। আপনিও তৃণমূল করেন, অপরপক্ষ তৃণমূল, বিক্ষোভটা কেন করছে সে ব্যাপারে আমি বলতে পারবো না। আর আমি আমার ইনস্ট্রাকশন মতো, আমার নেতৃত্ব আছে, তাদের ইনস্ট্রাকশনের বাইরে তো যাই না। তাদের একটা গাইডলাইন আছে, আমরা ওইটাই ফলো করি। কারণ আমরা এইসব ব্যাপারে আমি আপনাকে কিছু না, যখন একটা শাসক দলে আপনিও আছেন এবং উনি যারা বিক্ষোভ করছেন তারাও যে বিক্ষোভ করেছে সে তো আমার গার্জেন নয়, সে তো আমার রাজনৈতিক গার্জেনও নয়, আমার লোকাল গার্জেনও নয়। আমি যাকে অনুসরণ করে পার্টি করি তিনি আমাদের বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় মহাশয়, মুকুল উপাধ্যায় আমাদের নেতৃত্ব আছে, যুব নেতৃত্ব। তো ওনাদের ইনস্ট্রাকশন মতন আমরা চলি। হ্যাঁ, সুতরাং কে কি বললো তার ব্যাপারে আমরা মানাবো। তো এরকম বারবার অভিযোগ আপনার নামে? তো অভিযোগ যদি কেউ করে তার মুখে কি স্যালুট দিয়ে রাখবো বলুন? आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।